Assalamu alaikum students. I'm your course instructor, Miss Anika Saidzia from University of Education, Bank Road Campus, Lahore. And your major course in painting is thesis, which is practical based subject. And the course code of your subject is FINE 4125. Contents of major thesis project practical. Thesis should represent a significant body of independent. So thesis should represent a significant body of independent creative work. Students will be free to choose any topic of painting, and the students will explain and defend the conceptual framework and process of the major thesis work as well as the project outcome to provide the student with specific working format and guidance during planning and preparation of thesis exhibition. So today we are going to cover the lecture number 16, which is in which you will produce an imaginary artwork on the already discussed thesis idea. And the material which you can use is you can use canvases, hardboards and oil paints, and you will paint imaginary artwork relevant to your thesis idea. Helen Garrett. Helen Garrett is an artist with a deep sense of working with a poetic imagination. Helen Garrett discusses her work and the conversation she has with her work during its creation. She asks, do these expressions of creativity come from the imagination, or is the imagination a portal that opens this space and allows the conversation to occur? सो ये एक टोटली इमेजिनेशन बेस्ड हमें काम नज़र आता है, जिसमें हमें एक लैंडस्केप जो है उसकी इंडिकेशन आती है, बट वेरी माइन्यूट लेवल पे, वेरी लिटिल इंडिकेशन वी कैन से। और आर्टिस्ट ने एक हेजी और ब्लरी जो है एटमॉस्फेयर उसको कैप्चर किया है। जस्ट हमें एक मोमेंट्री मूवमेंट जो है वो नज़र आती है डेट शी हैज़ ट्राइड टू कैप्चर in her paintings, and imagination again हमें नज़र आती है। and she says that she used to communicate with her artwork. artist जो है वो अपने पेंटिंग के साथ जो है वो कम्युनिकेट करती है, मीन्स जो वो फील करती है, जो इमेजिन करती है, वो उन्हीं कलर्स को और उन्हीं स्ट्रोक्स को जो है वो अप्लाई करती है और एक्सप्रेस करती है। द ओपनिंग ऑफ द इमेजिनेशन. It is a challenge to try to capture with painted brush strokes something that is moving and changing all the time. The shifting clouds, reflections, and colors. Every second, the landscape is changing and made new by subtle transformations. जैसा कि हम इम्प्रेशनिज्म मूवमेंट में हम देखते थे that artists used to capture the momentary movements and momentary reflections and lights with the help of their broken strokes. तो आर्टिस्ट जो था उसने फर्स्ट टाइम जो है इम्प्रेशनिज्म में आउटडोर को एक्सप्लोर किया था, आउटडोर लैंडस्केप को, और उसके अंदर जो है आर्टिस्ट डिफरेंट टाइमिंग्स में, डिफरेंट डे टाइमिंग्स में जो है वो सिंगल आर्किटेक्चर को या सिंगल लोकेशन को पेंट करते थे टू स्टडी दैट स्पेसिफिक इफ़ेक्ट ऑफ लाइट एंड शेडोज़। सो उसी तरह से जो वो क्वालिटी है हमें कुछ हद तक जो है इस आर्टिस्ट के काम में नज़र आती है, एज शी इज़ टॉकिंग अबाउट टू कैप्चर दैट मोमेंट्री क्लाउड्स एंड रिफ्लेक्शंस। तो ऐसी चीज़ों को एक पेंटिंग में कैप्चर करना इट्स नॉट एन ईजी टास्क, जो कि आपको पता है कि मोशन में है, मीन्स क्लाउड्स हैं, लाइट है, रिफ्लेक्शन है। तो ऐसी चीज़ें जो हैं ऐसे जो एलिमेंट्स हैं वो दे आर इन कांस्टेंट मूवमेंट, और वो एक जो है अपनी प्लेस जो है वो चेंज करते रहते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। सो उसको आप एक कैनवस के फॉर्म में एक स्टैटिक उसमें फ्रेम में कैप्चर करते हैं, तो इट्स अ डिफ़िकल्ट टास्क, नो डाउट। Every second the landscape is changing and made new by subtle transformations. तो इसी चीज़ की आर्टिस्ट बात कर रही हैं दैट लैंडस्केप जो है वो विद इन सेकेंड्स जो है वो चेंज हो जाता है, और उसको एक स्पेसिफिक
फ्रेम में कैप्चर करना इट्स रियली डिफ़िकल्ट. The experience of making something from raw materials is a simple and fundamental one. The painting becomes a vehicle for ideas and feelings that are explored on an unconscious level during the building of layers. सो ऐसा काम जो है इमेजिनरी जो इमेजिनेशन बेस्ड काम होता है या हम कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट आर्ट जो होता है. तो जो इम्प्रेशनिज्म में हम अगर बात करें कि इम्प्रेशनिस्टिक काम जो होता है तो वो कॉन्शियस नहीं होता, उसमें इतना कॉन्शियस नहीं होता इंसान. आप जिस तरह से कलर फेंक रहे हैं आप अनइंटेंशनली जो है उसको स्ट्रोक्स को अप्लाई कर रहे होते हैं, कलर्स को यूज़ कर रहे होते हैं और लेयर बाय लेयर जो है आप अपनी पेंटिंग को डेवलप कर रहे होते हैं. जैसा इंसान फील करता है, जो जो इंसान की इनर फीलिंग्स होती हैं वो उसी के अकॉर्डिंग जो है उसको स्ट्रोक लगाता है. विजुअल कैसा बनता है, विजुअल आई कैची है कि नहीं, विजुअल जो है वो बैलेंस्ड है कि नहीं, वो चीज़ें जो हैं वो आर्टिस्ट को उस टाइम पे बॉदर नहीं करती हैं. आर्टिस्ट एक्चुअली कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा होता है. एक उसके लिए वो व्हीकल होता है और एक एक मीन होता है, एक मॉड होता है जिसके ज़रिए वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकता है. पेंटिंग हेल्प्स टू ब्रिंग फीलिंग इनटू अ डीपर एंड मोर यूनिवर्सल realm. When painting, she looks for suggestions of shape and form within the background, almost like an archaeological dig, pulling the images out that emerge and then create a scene. सो आर्टिस्ट जो है वो बेसिकली क्या करती हैं, डिफरेंट शेप्स को, डिफरेंट फॉर्म्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करती हैं, स्पेशली इन द बैकग्राउंड. और ऑब्वियसली जब आप कलर अप्लाई करते हैं, स्ट्रोक्स अप्लाई करते हैं, आप थिक टेक्सचर अप्लाई करते हैं तो ऑटोमेटिकली इसमें कोई ना कोई शेप्स और जो फॉर्म्स हैं वो ऑब्वियस होना, आइडेंटिफाई होना शुरू हो जाती हैं. बट फिर भी आपको एक एफर्ट चाहिए होती है उसको डिटर्मिन करने के लिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए. तो आर्टिस्ट भी यही कह रही हैं कि जैसे कोई आर्कियोलॉजिस्ट जो होता है वो एक्सकवेशंस करता है और जो है वो डिगिंग करता है और फिर जो चीज़ें हैं नई बीच में से जो है वो सामने आती हैं और उसके साथ जो है हमें एक न्यू जो है वो इमेज नज़र आता है, एक न्यू सीन जो है वो डेवलप होता है. तो सेम जो टेक्निक है आर्टिस्ट ने उसको रिलेट किया है. योर इमेजिनेशन रिफ्लेक्ट्स योर सोल. दिस इज़ द अल्टीमेट फ्रीडम ऑफ द ह्यूमन स्पिरिट. As a young artist, she became fascinated by the images and characters that were appearing and reappearing in drawings, and she realized they were of a deep symbolism that she did not understand but knew was a part of her also. So artist जब भी कोई चीज़ पेंट करता है, इवन वो एक डॉट मार्क कर रहा है, एक लाइन जो है वो लगा रहा है, एक कलर जो है उसका पैच लगा रहा है, एक स्ट्रोक को है जो इम्प्लीमेंट कर रहा है या कोई कलर चूज़ करके उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, तो आर्टिस्ट का वो इनर ही होता है. आर्टिस्ट का भी, आर्टिस्ट के माइंड में वो चीज़ें कहीं ना कहीं जो हैं वो कैप्चर होती हैं, वो फिक्स होती हैं, जो वो इंटेंशनली ना भी करे बट कहीं ना कहीं उसके कॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें होती हैं. सो आर्टिस्ट जब भी कोई काम करेगा, जो भी कोई चीज़ इमेज बनाएगा, जो भी कलर चूज़ करेगा तो वो उसकी इनर फीलिंग्स को ही पोर्ट्रे करेंगी. ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आर्टिस्ट जो है वो अपने से डिफरेंट कोई काम कर ले या अपनी पर्सनालिटी से डिफरेंट काम कर ले. आर्टिस्ट का जो काम है वो उसकी अपनी इनर रिप्रेजेंटेशन होता है, इनर फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करता है. The Temptation of Saint Anthony. Surrealism is the stressing of subconscious or irrational significance of imagery, or in more simplistic terms, the use of dreamlike imaginary. Dali's absurd imagination has him painting pictures of figures no person would even dream of creating. So, this is a very famous painting by the painter Salvador Dali, who was a very famous painter of surrealism movement. And इस पेंटिंग के अंदर आपको जो है वो इमेजिनेशन नज़र आ रही है आर्टिस्ट की, और एक ड्रीम लाइक क्वालिटी आपको नज़र आती है, बिकॉज दिस इज़ समथिंग विच इज़ अनयूजुअल, विच इज़ नॉन रियलिस्टिक एंड आउट ऑफ द वर्ल्ड.
Geopolitus child watching the birth of new man. This is another painting by the same artist Salvador Dali, who was intrigued with the images which occur at the boundary between sleeping and waking. They can occur when people are falling asleep or when they are starting to wake up, and they tend to be extremely vivid, colorful, and bizarre. He experimented with various ways of generating and capturing these fantastical images. Here is another famous painting of Salvador Dali, Sleep, and here is another artwork by the same artist. So this is the end. I hope that you have fully understand about the imagination and how you can paint an imaginary artwork um, by considering all these elements which I have discussed with you. Thank you.